Hello, dear students. I hope you all are fine. Good evening. Once again, we are meeting today after 3 lectures. You remember what did we study in the first 3 lectures? We studied about charges and their properties. We solved some problems. And in my third lecture, I discussed methods of charging. आज थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं. आज हम स्टडी करते हैं Coulomb's law. Today's lecture is going to be about Coulomb's law. Basically, I will be giving you an idea on important aspects of Coulomb's law, and then in my next lecture I will be focusing on vector form of Coulomb's law and superposition principle. Thereafter, some greater impact, greater focus on numerical problems. तो चलो Coulomb's law start करते हैं. Students, law of gravitation आपने पढ़ा है. Exactly उसके जैसा ही उसका स्टेटमेंट है Coulomb's law का. What is the statement for Coulomb's law? Coulomb's law states that the force between any two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. Students, in this law, I want you all to remember certain things. Electrical force. Coulomb's law is about electrical force. This force is also called Coulombian force. This force is also called Coulombian force. It is between any two. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो. स्टेशनरी पॉइंट charges. Coulomb's law between any two stationary point charges. What is the meaning of point charges? अभी 2 मिनट में डिस्कस करते हैं. Is directly proportional to the product of magnitudes of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. What do you mean by point charges? Means very small, very small. Usually हम point charges की बात करते हैं तो हमको तुरंत electrons याद आ जाते हैं, protons याद आ जाते हैं, point charges. But it is not necessarily so. आपके पास बड़े-बड़े अगर charges होते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स. इमेजिन करो मेरे पास बड़ा सा बॉल है, फुटबॉल के जैसा बॉल. 2 फुटबॉल के साइज के मेरे पास बॉल्स है. दोनों के ऊपर चार्ज है, लेकिन ये दोनों बॉल्स बहुत दूर है. एक बॉल दिल्ली में है, दूसरा बॉल अहमदाबाद में है, तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. तो वो दोनों बॉल्स कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल दिखेंगे. तो अगर कोई भी 2 चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो वी कंसीडर देम एज पॉइंट चार्जेस. रिमेंबर सर्टेन थिंग्स अबाउट Coulomb's law. First thing, it is applicable to point charges. Second thing, it is applicable to stationary charges. Coulomb's law is applicable to point charges and stationary charges. Both the charges must be at rest. ठीक है, एक चार्ज अगर रेस्ट में होगा, दूसरा मोशन में होगा तो भी चलेगा. Like for example, in an atom between the nucleus and the electron, if this is the nucleus and this is the electron, then nucleus is at rest, electron is in motion. Nucleus is positively charged, electron is negatively charged. इन दोनों के बीच में Coulombian law applicable हो सकता है. Even if one charge is at rest and the other is in motion, then also Coulomb's law can be applied. But at least one has to be at rest. If both of them are in motion, you cannot apply Coulomb's law. So this is an important part of Coulomb's law. There are 4 things I want you to remember about Coulomb's law. I want to rub the board, but I want you to note down this statement as I have written, because in the textbook, NCERT textbook, it is not given in exactly the same form.
I will wait for a moment. I want you to copy down the statement, then I will proceed further. Okay. Now I told you I want you to remember 4 points about Coulomb's law. First point, I have already discussed that with you. It is directly proportional to the product of magnitudes. Remember that it is proportional to product of magnitudes. Positive charge, negative charge important नहीं है. Product of magnitudes, and we have the formula F is proportional to Q1, Q2. So directly proportional to the product of the magnitudes, inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So I can write F proportional to 1 upon R square. This point is also called as inverse square law. Remember this. Coulomb's law is also called as inverse square law. So it is directly proportional to the magnitude of the two charges, product of two charges, and inversely proportional to the distance between the two charges. This statement is called as inverse square law. In this, remember one thing. I want you to remember this, very very important. मान लो क्वेश्चन में अपने को दो चार्जेस दिए हैं. We have been given two charges. This is one charge. This is another charge. This charge magnitude is Q1. The magnitude of another charge is Q2. तो डिस्टेंस कैसे मेजर करने का? फर्स्ट चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर तक. सो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज. डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द center of one charge to the center of another charge. We always measure the distance between the centers of the two charges. That is something important I want you to remember. Then another thing, third point, it acts along the line joining the two charges. इसका मतलब क्या होता है ये जरा समझो आप. देखो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है. अगर दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस है तो आपको पता है दैट दे आर गोइंग टू बी यस अट्रैक्टिव, क्या रिपल्सिव फोर्स. If the two charges are like charges, then there will be repulsive force between the two charges, and if they are unlike charges, it will be attractive force. Plus plus repulsive, minus minus repulsive, plus minus minus plus attractive. चाहे जो भी हो, चाहे attractive हो चाहे repulsive हो, the force acts along the line joining the two charges. Means what? See, this is the line joining the two charges. Q1 applies a force on Q2. मान लो दोनों पॉजिटिव है. Q1 is positive, Q2 is positive. क्या होगा? रिपल्शन होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि Q1 ने Q2 के ऊपर फोर्स लगाया और Q2 के ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लगता है. That will not happen. The force will always act along the line joining the two charges. It will act along this line. This line represents the force exerted by Q1 on Q2. Q2 will also exert a force on F1. दोनों रिपल्सिव हो गए, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो Q2 Q1 के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा. ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं. अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता तो Q1 Q2 को अब अट्रैक्ट करेगा. द फोर्सेस विल बी अट्रैक्टिव. Q1 विल अट्रैक्ट Q2, Q2 विल अट्रैक्ट Q1. तो Q1 जब Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो वो इसी लाइन पर होगा. ऐसे नहीं हो सकता है. दिस इज नॉट पॉसिबल. Similarly, Q2, when it attracts Q1, it will be along the same line. It won't be this way. It won't be this way also. So this is important. Remember this. That the two forces act along the line joining the two charges. And this statement very very important. The force depends upon the medium in which the two charges are placed. अगर मैंने इन दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा है
usually vacuum or air we represent as, we call as free space. अगर मैंने दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा है या एयर में रखा है या फ्री स्पेस में रखा है तो द फोर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. बट इफ आई प्लेस देम इन वाटर, सपोज मैंने इन दोनों चार्जेस को पानी में रख दिया तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा. इफ आई प्लेस ग्लास बिटवीन द टू चार्जेस देन ऑल्सो द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बिकम लेस. सो इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम in which the two charges are placed. So what are the four important things I want you all to remember about the two charges? First, it is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. It is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. This is also called as inverse square law. And the distance between the two charges कैसे measure करते हैं याद करो, from the centers of the two charges. Then you also remember that it acts along the line joining the two charges. And finally, very important, it depends upon the medium in which the two charges are placed. Now if I combine all of this, if I combine the first and the second point, then I can write F is proportional to Q1 Q2 by R square. और अगर मुझे इसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? F is equal to K Q1 Q2 by R square. What is K? K is equal to constant of proportionality. K is the constant of proportionality, but its value is not constant. It changes from medium to medium. याद रखो, K की value medium to medium change होती है. It is also called as Coulomb's constant. It is also called as Coulomb's constant. The value of K, इस सब जगह पर K small है, capital K नहीं है. K is given as 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught is called as, इसको epsilon naught बोलते हैं, E नहीं है. Epsilon naught is called as permittivity of free space. Epsilon naught is called as permittivity of free space. तो students इतना लिख लो फटाफट. I want to rub out the board. I want to proceed further with the topic. चलो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. तो क्या है फॉर्मूला याद है आपको? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रिकल फोर्स. I will write like this. Fe, electrical force is equal to K Q1 Q2 by R square. K is equal to constant. It depends upon medium. अच्छा, K की वैल्यू याद रखो, 9 into 10 raised to 9. यूनिट्स क्या लिखूं मैं इसका? यूनिट्स, चलो यूनिट्स बनाते हैं, इसमें सही बनाते हैं. Fe फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. इज इक्वल टू, वी डोंट नो द यूनिट ऑफ K. Q1 का यूनिट कूलम, Q2 का यूनिट कूलम और ये मीटर स्क्वायर. चलो बताओ क्या मिलेगा बच्चों? मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर. कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो हमको मिलेगा अपॉन कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू K. तो अब K का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ K. लेकिन याद रखो K की ये वैल्यू फ्री स्पेस के लिए है. दिस वैल्यू इज ओनली फॉर फ्री स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्पेस? यस, वैक्यूम और एयर. फ्री स्पेस इज वैक्यूम और एयर. बट इफ द मीडियम चेंजेस then the value will change. I gave you one more value of K just now, 1/4 pi epsilon naught. epsilon naught की वैल्यू होती है 8.854 into 10 raised to -12. इसका यूनिट क्या लिखेंगे यार? चलो बनाते हैं इसका भी यूनिट. एक काम करते हैं, ये K की वैल्यू लिख लेते हैं. तो मैं Fe को ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 pi epsilon naught
multiplied by Q1 Q2 by R square. Students, most of the times प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आप इसी फॉर्मूला का यूज करोगे। तो अब आगे जाकर के भूल जाओ, आप ये वैल्यू ही याद रखो। और एक बात, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, यही तो के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू जो के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर per coulomb square. Remember this value. So now I want to find out the unit of epsilon naught. It's very simple. Epsilon naught को इधर ले लूं मैं, तो what do I get? 1/4 pi multiplied by Q1 Q2 by Fe R square. चलो अब यूनिट बनाओ। 1/4 pi तो कांस्टेंट है, Q1 Q2 कूलम स्क्वायर हो गया, कूलम इंटू कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर। सो यू कैन राइट दिस यूनिट एज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो लेट मी राइट लाइक दिस, एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। अब अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो k इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 8.854 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मिल जाएगा, जो k की वैल्यू है। Is that clear, everybody? That is how you get the value of k. So students, remember, henceforth while solving problems, most of the times I will not write k. Every time in the place of k I will write 1/4 pi epsilon naught. वो लिखना ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम चेंज होती है। दूसरी और एक बात, अभी थोड़ी देर में हम k और एक स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये वाला जो k है स्मॉल k है। मैं अभी बस 5 मिनट में दूसरे के पर आ रहा हूं जो कैपिटल लिखेंगे। इट इज कॉल्ड एज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो आई डोंट वांट यू टू मिक्स अप एंड हेंस आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस की अगेन नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइक दिस, रिमेंबर इट। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये मैं यही कंटिन्यू कर देता हूं, बाद में आप एक साथ कॉपी कर लेना। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमने दो चार्जेस को एयर में रखा है तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, लेकिन अगर किसी और मीडियम में है, in any other medium, this formula will be written as Fe is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square। मैंने इधर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, वो एयर के लिए है। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम उसको फ्री स्पेस बोलते हैं। लेकिन अगर कोई और मीडियम होगा तो हम ऐसे लिख देते हैं, और यहां पर अब मैं कन्वीनियंस के लिए m लिख देता हूं, Fm, फोर्स इन मीडियम। ये E को हटा देते हैं, हमको पता है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स ही है। नाउ इफ आई फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू फोर्सेस, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा? F/Fm। Are you understanding that, students? 1/4 pi कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square, Q1 Q2 by R square कैंसिल हो गया। फिर से मैं याद करवा दूं, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन is called permittivity of medium, and this now is the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space। permittivity का मीनिंग थोड़ा हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल टेक इट एज इट इज कि वो कुछ तो है। रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज ऑफन डिनोटेड एज एप्सिलॉन r, relative permittivity,
epsilon r is called relative permittivity. And it is also called as K, capital K. Capital K is also called dielectric constant. Capital K is also called dielectric constant. So ये सारी बातें याद रखो और राइट आउट फास्ट. ओके लेट अस गो अहेड. चलो बच्चों एक बार फटाफट फिर से फॉर्मूला लिख दूं मैं. फोर्स इन फ्री स्पेस एयर में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी का मीनिंग डिस्कस करना बाकी है. Q1 Q2 by R square. Equation number 1. F is force in free space. Fm 1/4 pi epsilon. What is epsilon? Permittivity of medium. Fm force in medium between the two charges is equal to Q1 Q2 by R square. Equation number 2. अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, F/Fm is equal to epsilon by epsilon naught. ये रेशियो को क्या बोलते हैं? It is denoted by epsilon r. What is epsilon r? याद करो. रिलेटिव परमिटिविटी. एक बार फिर से लिख देता हूं मैं. रिलेटिव परमिटिविटी. And it is also denoted by K. What is K? Dielectric constant. K is called dielectric constant. सेकेंड चैप्टर में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. डिफरेंट मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज अलग अलग होती है. याद रखो एयर के लिए कि एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ माइका इट इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 होता है. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इट इज 81. ये सारी वैल्यूज याद रखो बच्चों, काम आएगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय. इसमें से बहुत सारी वैल्यूज जो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है. ये ज्यादा इजी मेथड है, जरा इसको समझो आप. फिर अगर ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखना है आपको तो क्या मिलेगा आपको? इसकी वैल्यू वेरी करती है 5 to 10 के बीच में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑफ ग्लास भी है, तो अलग अलग टाइप के ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग होता है. एंड के मेटल वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स याद रखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज हाईएस्ट. इट इज इंफिनिटी. इन सब का इंप्लीकेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फिर से एक बार ये देखो रेशियो. F/Fm is equal to K. If I write here F/Fm is equal to K, what does that mean? अगर मैं Fm को K की जगह ले जाता हूँ, K नीचे ले आता हूँ, तो हमको मिलेगा Fm is equal to F by K. याद करो what is Fm? Yes, electric force between the two charges in medium. What is F? Force in air. What is K? Dielectric constant. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं F डिवाइड बाई K करता हूं तो वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? कम हो जाएगी. उसका मतलब ये हुआ कि मीडियम में फोर्स कम हो जाता है. किसी भी मीडियम में फोर्स कम हो जाता है, याद रखो ये. सो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने दो चार्जेस को, ये कोई ग्लास शीट है, कांच की एक शीट है, ये कांच की एक शीट है और एक चार्ज इधर रखा, एक चार्ज इधर रखा और इनके बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होता है वो मुझे पता लगाना है. अगर एक चार्ज अपना यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां पर है और मान लो ये ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो फोर्स जो है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा. इस बात को आप याद रखो स्टूडेंट्स.
अच्छा, अगर मैंने मेटल रखा होता बीच में, मान लो कॉपर का कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, शीट रखा होता कॉपर का, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? F बाय इंफिनिटी। ऐसा क्वेश्चन है ना, बहुत बार आता है नीट में, बहुत बार आता है कि दो चार्जेस के बीच में कॉपर की प्लेट रख दी, दो चार्जेस के बीच में एल्यूमिनियम की प्लेट रख दी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स जीरो हो जाएगा। याद रखो ये बात। सो स्टूडेंट्स याद रखो, एयर में मैक्सिमम फोर्स मिलता है किसी भी मीडियम में चार्जेस को रखने से, उनके बीच में फोर्स डिक्रीज हो जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि मीडियम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसकी वजह से जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो मीडियम की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फोर्स कम हो जाता है, उस प्रॉपर्टी को ही परमिटिविटी बोलते हैं। सो व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम is the property by which the electrical force, it is a property due to which the electrical force between any two charges in the medium decreases. That property is called as permittivity. मैंने आपको बताया था, मैं permittivity का मीनिंग समझाऊंगा आपको। तो बस permittivity ऐसी ही एक प्रॉपर्टी है मीडियम की जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स वगैरह स्टडी किया है। लास्ट में फटाफट मैं बोर्ड पे 4 पॉइंट्स सिमिलैरिटीज के, 4 डिफरेंसेस के लिखूंगा। किसकी सिमिलैरिटीज? देखो, मैं ये जो फोर्स आपको समझा रहा हूं ना, इसके जैसा ही एक फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया है ग्रेविटेशनल लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो चलो हम देखते हैं ग्रेविटेशनल लॉ एंड कूलम्स लॉ, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज क्या क्या है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? याद करो, 11th में पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में आप लोगों ने। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और यहां पर फॉर्मूला है F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो बहुत सिमिलरिटी है ना दोनों में। तो दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज है, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, देख लेते हैं फटाफट। आप ये सारी वैल्यूज पहले कॉपी कर लो आप। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशन लॉ के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है। फटाफट 2 मिनट का काम है। सबसे पहले तो दोनों का फॉर्मूला देख लो। इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर, और ये हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। दोनों में क्या क्या पॉइंट्स कॉमन है? तो दोनों फोर्सेस के बारे में है। बोथ डिफाइन फोर्सेस, both are inverse square law. This force is inversely proportional to square of the distance. This is also inversely proportional to square of the distance. Next, both define central forces. मतलब क्या? अभी हमने डिस्कस किया था, अगर दो चार्जेस होते हैं तो डिस्टेंस दोनों चार्जेस के सेंटर से मेजर करते हैं, और अगर दो बॉडीज होती है जिनका मास कंसीडर करना है तो दोनों का सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं। जहां दोनों बॉडीज का सेंटर ऑफ मास होगा, COM सेंटर ऑफ मास, तो दोनों सेंटर्स को कंसीडर करते हैं। ये चार्ज का सेंटर है, ये सेंटर ऑफ मास है। एंड लास्ट पॉइंट, फोर्सेस डिफाइंड बाय बोथ आर कंजर्वेटिव। स्टूडेंट्स याद करो, कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? चलो एक बार मैं फिर से याद करवा दूं। एक बात आप सब याद रखो, फोर्स हमेशा क्या करता है? Wherever force is applied to a body, work is done. And if this work does not depend upon the path along which displacement takes place, it only depends upon the initial and the final position of the body, then the force is called conservative force. I am repeating. When the work done by the applied force depends only upon the initial and the final position, it does not depend upon the path along which the displacement takes place, then the force is said to be conservative force. So, the force defined by Coulomb's law, the force defined by gravitational law. In other words, electrical force and gravitational force both are conservative. Students याद रखो, कहीं कहीं घुमा फिरा कर इसके रिलेटेड JEE में
एंड नीट में क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टाइम फिर से रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ फटाफट लिख लो डिफरेंसेस बिटवीन द टू फोर्सेस। चलो स्टूडेंट्स डिफरेंसेस देख लेते हैं फटाफट 2 मिनट में, एकदम सिंपल है, देखकर आप समझ जाओगे। कूलम्स लॉ हमने बहुत बार अभी तक तो देख लिया है, इट इज बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ग्रेविटेशनल लॉ, फोर्स बिटवीन masses. Then Coulomb's law, forces may be attractive or repulsive. Coulomb's law में जो भी फोर्सेस होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। ग्रेविटेशनल लॉ में फोर्सेस ऑलवेज अट्रैक्टिव होते हैं, दो मासेस के बीच में फोर्स हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है। Coulomb's law is not a universal law. Gravitational law is a universal law. Means what? देखो ये बॉडीज कैसी भी हो, पॉइंट मासेस हो, बड़े हो, मासेस रेस्ट में हो, मोशन में हो, स्टेशनरी नहीं भी हो तो चलेगा। In all situations, at all places in the universe, gravitational law is applicable. But Coulomb's law is not applicable in all situations. If the two masses are not at rest, if both the masses are in motion, then you cannot apply Coulomb's law. Both the masses have to be point masses. ऐसी कुछ conditions है, अगर conditions satisfy नहीं होगी तो Coulomb's law को हम apply नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था differences between the two types of laws। दो और छोटी छोटी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, उसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। सबसे पहली बात वो ये है कि स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास मान लो दो चार्जेस है, चार्ज Q1 एंड चार्ज Q2 सपोज, तो अगर Q1 Q2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। Q1 ने जो फोर्स अप्लाई किया वो F1 है सपोज, Q2 ने जो फोर्स अप्लाई किया वो F2 है, देन F1 is equal to minus F2. So the force applied between the two charges is always equal and opposite. ये याद रखना है आपको। फिर बाद में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको याद आता है तो जब मैंने आपके साथ चार्जेस डिस्कस किया था एंड चार्ज का यूनिट डिस्कस किया था, याद आ रहा है चार्ज का यूनिट? अभी भी तो हम यूज कर चुके हैं, कूलम। कैसे डिफाइन किया था हमने कूलम का यूनिट? मेरे फर्स्ट लेक्चर में, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से उस लेक्चर को आप लोग देख लेना। देखो मैंने उसमें कूलम को कैसे डिफाइन किया था स्टूडेंट्स। उसमें हमने डेफिनेशन ऐसे स्टडी किया था कि व्हेन, याद करो, 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर in 1 second, then the charge flowing through that conductor is said to be 1 coulomb. अब हम कूलम को कूलम्स लॉ से दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to K Q1 Q2 by R square। आप जब भी कोई भी यूनिट को डिफाइन करना चाहते हो तो एक आध वैल्यू को छोड़कर आप सारी चीजों को कांस्टेंट कर दो। अगर हम F को जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, K की वैल्यू उनको पता है 9 into 10 raised to 9। Q1 को मैं 1 कूलम लेता हूं, Q2 की वैल्यू भी 1 कूलम लेता हूं, और दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर लेता हूं तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट? 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, आई विल गेट 9 into 10 raised to 9 न्यूटन्स। चलो अभी कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स। मेरे पास दो चार्जेस है, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज इधर है। ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, 1 कूलम 1 कूलम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? 9 into 10 raised to 9 newtons. So how do we define 1 coulomb?
Suppose I have two charges placed at a distance of 1 meter from each other. Both are positive charges. Both are point charges. याद रखो कितनी सारी बातें हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस, दोनों पॉजिटिव, लाइक चार्जेस, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा. दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. और अगर वो रिपेल करते हैं और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स है, तो वो दोनों चार्जेस 1 कूलम के हैं. अब डेफिनेशन बोलता हूं, सुनो. When two like point charges are placed at a distance of 1 meter from each other, and if they repel each other with a force of 9 × 10⁹ newtons, then each charge is said to be 1 coulomb. Clear everybody? That's it. Have a nice day. Have a nice time. रात हो गई है. So good night students. See this lecture very well when it will be posted, uploaded on the YouTube tomorrow during the daytime. As soon as this lecture gets over, आपको ये lecture मिल जाए, उसके बाद मैं फिर से थियरी ही आगे कंटिन्यू करूँगा. मैंने यहाँ पर सारा जो फोर्सेस डिस्कस किया है, सारा का सारा स्केलर फॉर्म में था, लेकिन हम जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें ये सारा का सारा फोर्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में समझाना पड़ेगा. सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टडीइंग कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, एंड देन वी विल स्टडी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट lots of problems. With that we would have done sufficient amount of work in this chapter. चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड्स. चार्जेस कूलम्स लॉ वाली स्टोरी के साथ खत्म हो जाएगा और हम फील्ड्स आगे बढ़ाएंगे. तो मेरा नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.